परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और तुम दोनों को मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज मैं काइंड ऑफ पहली बार किसी एजेंसी को के साथ बात कर रहा हूँ, और वो भी इंडियन एजेंसी, एंड दोज गाइस आर एक्चुअली क्रशिंग इट राइट नाउ। तो आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से और समझने को मिलेगा। एंड सो वेलकम। थैंक यू। तो यार बिफोर वी स्टार्ट कुछ भी हम ट्रिकी और वो चीजें कुछ पूछें, बोलते ना टेक्निकल चीजों के अंदर जाए, तो जस्ट अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट बोथ ऑफ यू, एक एक करके जरा सा, उसके बाद हम बात करते एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। तो जितने टाइम से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उससे शायद ज्यादा टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं। सो या रियली एन ऑनर टू एक्चुअली फॉर मी एंड निक बोथ टू बी हियर। So yeah, about us, like I'll, me, I started off as a corporate guy after my MBA, and in 7 months I realized that nah, ye maza nahi aa raha. This is not the life that I have in mind for me, and I started learning, started doing different things here and there, and then I met Nick, who was in a journey of his own, and that was where we realized that yeah, visions for the future, for the things that we are looking for, really coincide well. So yeah, from a corporate 9 to 5 dropper to someone who is running his own agency, that has been my journey in concise. नहीं नहीं, जल्दी ड्रॉप कर दिया, मुझे 4.5 साल लगे थे। 7 महीने में I was done. कि इससे ज्यादा ये, I asked myself that question that 5 years from हाँ, now, do you see yourself here or not? I was like, यहाँ तो नहीं नाइस देखता. नाइस नाइस नाइस, ठीक Yeah. ठीक, परफेक्ट। या निखिल, यू टेल मी। Yeah, no, thank you for having us on this. But मेरी भी जर्नी ऐसी रही थी, like काफी सारी चीजें फैजल और मेरी has been very similar. So I have done my corporate job in IT. I was a computer science programmer by profession. So that I left in like 7 months, 6 months tha, and then 1 month for the probation period and all those things. And after that I started, like मेरा पहले से ही plan हो गया था कि e-commerce, and for like very different how I came into the e-commerce world. But starting say I've been seeing you held that first group in Haus Khas, I think, right? The meetup. हाँ हाँ, राइट, यू So वर देयर। at that time I was totally blank. Very different journey and very rapid things have changed for me. But इट वाज बैक इन 2018 आई थिंक ना, yes. So उसके एंड यू वर देयर दैट टाइम। I was in that. I was in ओह, yeah. आई स्टिल हैव अ पिक्चर ऑफ दैट। हमने लास्ट में शायद एक फोटो क्लिक करी थी। हाँ जी. मुझे देखना पड़ेगा। आई नीड टू बेसिकली फाइंड आउट कि अच्छा वहां पे निखिल था या निक था या नहीं था। नहीं, I was there. We were having good time और काफी उसमें से, I mean, there were at that time a lot of terms were being thrown around, bidding, और इन सब पे हम लोग ने बात की थी. हाँ 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 हाँ, Completely unaware about that. At that time I was just starting my journey. So मेरा e-commerce चला, थोड़ा सा up हुआ, थोड़ा सा down हुआ, and then I corporate savings से जो मेरी चली थी, बची थे पैसे, I was using all of those money. So like you now and previously also have said कि unless you have a source of income, don't Yeah. don't do e-commerce. तो वही मेरा Yeah. scene था. But I realized that by having a fault of my own. तो फिर मैंने सोचा कि यार इसी चीज को I started putting out results. तो एक दो brands को I just helped out, a couple of dropshippers I helped out. So it got very interesting कि ये भी like, and people like, I rather than asking कि okay pay me for a consultancy or something, they said what are the charges. So I said कि okay, this could be a thing, a side income जो भी हो सकता है. So I started Nice. with the agency for consulting and something, and then I met Faisal via social only, and फिर उसके बाद से we started our journey together on brands. फैजल ने तो सोशल मीडिया से सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, उसने लाइफ पार्टनर भी ढूंढा है। तो वो भी हम शायद बात कर पाए उस बारे में, उस टॉपिक को भी टच कर पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग यार, मुझे सबसे अच्छा एक चीज लगी कि मुझे जो काम 4.5 साल लग गए, वो तुम दोनों ने 7 या 6 महीने के अंदर तुमने बोला भाई ये हमारे काम का नहीं है, बिजनेस ही करेंगे हम। और मतलब या तो ये हो रहा है कि जितनी जनरेशन आगे जा रही है उतनी ज्यादा फास्ट हो रही है भाई, 2 3 4 महीने में पता चल गया नहीं करना, अपना बिजनेस करना है। Yeah, nahin, we are connected to a lot of very young guys, 19, 20 years old. Yeah. They are like, we take so much inspiration from that's मतलब मेरे साथ भी ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए। मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ, जब भी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ ना, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, you get like blown away with their like mindset और वो जो काम कर रहे हैं। कि एक मेरे पास बंदा आया था 2020 में ट्रेनिंग लेने गूगल के ऊपर, एंड ही वाज लाइक, निखिल यू वर आल्सो द पार्ट ऑफ गूगल क्या ट्रेनिंग में? नहीं, नहीं, ओके।
तो वो वहां पे था, उस बंदे की एज थी 17 ईयर्स, और उसने फिगर आउट कर लिया कि यूएस में कंपनी कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट कैसे लेके आऊंगा मैं, स्ट्राइप, वो जो इश्यूज और जो चैलेंजेस हमें 25-25 साल 26-26 साल की एज में जब हम कर रहे थे उसे, वो उसने उसी समय फिगर आउट करे, वो लगा रहा. And by I think he's 18 or 19 right now, and he is doing $150,000 per month in his e-commerce business. Nice. Or and you feel like, "Arey, yaar, you know nothing." Yeah. Like these guys, they know all. Like they don't know everything, but they have that hunger कि अरे हम कर लेंगे, figure out कर लेंगे. Yeah. आई थिंक वो चीज हम लोगों ने बहुत लेट, स्पेशली मेरा तो रहता है कि मैं थोड़ा सा परफेक्शन वाली चीजों में घुस जाता हूँ, तो पेंडिंग रह जाती चीजें. बट आई थिंक दैट इज व्हाट आई लर्न कि अ लॉट ऑफ नॉलेज इज नॉट एनीथिंग. आप थोड़ी सी नॉलेज लो और कर डालो. दैट्स इट. बेसिकली वही जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. आज मैं एक बुक भी एक्चुअली पढ़ना मैंने शुरू किया है, बिकॉज आई केम अक्रॉस अ यूट्यूब वीडियो, वहां पे उस बुक के बारे में था. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे ही मुझे कोई बता देना कि ये चीज है और मैं उस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ उस समय, तो आई जस्ट गो अहेड एंड राइट अवे बाय इट ऑन माय किंडल, फटाफट बाय करी, चलो शुरू कर दो. कि टाइम ना लगाओ उस चीज में. अगर या तो तुम उसके साथ जुड़े रहोगे, या अगर वो तुम्हारे साथ रेजोनेट नहीं करेगी तो तुम छोड़ दोगे. तो यू आर नॉट गोना लूज एनीथिंग, आइदर यू गोना गेन इट और यू विल अंडरस्टैंड कि अरे ये मेरे काम की नहीं है. तो वो जो फास्ट काम करने वाला चीज है ना, वो हम मार्केटर्स के अंदर एक सबसे बड़ा मुझे लगता है पॉजिटिव पॉइंट है, कि हम बहुत जल्दी कर सकते हैं. और आज की मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं बात कर रहा था अपनी वाइफ के साथ अबाउट लाइक द बेनिफिट और द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन मार्केटर रेदर देन अ गाय जो एक 1.5 महीना रिसर्च करते हैं. हम एक ही दिन में स्टोर भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, हम लॉन्च भी कर देंगे एड्स, और हम 2 दिन के अंदर बता भी देंगे चलेगा नहीं चलेगा. Right. इससे छोटा एमवीपी कोई भी नहीं बना सकता. और ये और दूसरे बंदे क्या होंगे, मैंने इवन जो मैं जितने फॉरेनर, जितने अंग्रेज लोग हैं, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने देखा है, दे गेट रियली सरप्राइज कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट पेज रेडी कर लूंगा ना लैंडिंग पेज के साथ फटाफट, विद इन लाइक 2 hours, दे विल बी ओह सो फास्ट, हाउ यू डिड इट. एंड आई वाज लाइक यार इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब अगर यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू नो द फ्रेमवर्क, तो 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट गोना बी द बेस्ट, बट इट विल बी अ गुड प्रोटोटाइप टू टेस्ट इट. राइट, ट्रैफिक लाने के लिए. एग्जैक्टली. और ये आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परफेक्शन वाली चीज जो होती है, कि आई थिंक दैट हिंडर्स योर ग्रोथ. इट्स गोना जस्ट ड्रैग इट. Yeah, I think there should be a very healthy balance between speed and perfection. It should be good enough to that you can show it to the CEO of a company. It shouldn't be like the best, but it should be good enough that this is going out as a proposal from my company, or this is being read by a good number of people. So I think मेरा और निक का वो speed और perfection का जो match है, वो बहुत ही सही है. बहुत important. Right. By all means, like marketer की यहाँ जहाँ पे praise है, वहाँ पे एक उसका disadvantage भी यही है कि हम MVP को ही फाइनल भी मान लेते हैं. हम उसके ऊपर आइटरेशन नहीं करना चाहते. और जिन भी बंदों को मैंने देखा है, those who have actually passed a very respectable figure in terms of revenue, उन लोगों ने क्या किया, वो आइटरेशन करते रहे, वो रुके नहीं. हमें क्या होता है, हम एक बार तो प्रोडक्ट मार्केट फिट निकाल लिया, बेचना शुरू किया, बिक रहा है, लेकिन हम क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करते, which you guys do the most being in the agency, right? And 5-6 साल ये बिजनेस करके सिर्फ यही मुझे समझ में आया कि how marketers are like totally playing the game of randomness. You are throwing a lot of darts and seeing which one is sticking, and that's it. और उसके बाद ये नहीं देखते कि अरे ये स्टिक हो गई है, तो चलो अब इसके ऊपर और आइटरेशन करें. हमें पता चल गया बिक रहा है, पोस्चर करेक्टर बिकता है, मालूम पड़ गया, कंफर्मेशन है, मतलब मार्केट में डिमांड है, पोस्चर लोगों के खराब होते हैं, चलो अब एक ही वीडियो को सारे मार्केटर्स ने बर्न आउट कर दिया. लेट्स क्रिएट मोर कंटेंट, यूजीसी, ये सारी चीजों के बारे में. या Amazing यार. चलो यार, tell me like something about your agency यार. पहली बात तो उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, but if you tell me the name and again and tell me like कैसे वो decide किया नाम, और how is it going right now? Brandslane. Okay, so Brandslane was a baby of imperfection, और हम लोग ने इतना ज्यादा उसके ऊपर डिले किया था. I think I still have that diary जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी, and I'm keeping all my journals safe,
ताकि उसको कुछ फ्यूचर में मेमोरी की तरह से यूज कर सकूं. बट देयर इज लाइक 5-7 पेजेस ऑफ बड़ी वाली डायरी which has so many names, and we were not able to fixate on any single one. So we just like chose 3 names, और first 2 wasn't in the option क्योंकि वो कुछ register हो चुके थे, कुछ conflict नहीं थे. So we had to go with Brandslane, and fortunately Brandslane resonated very well with people. Like people started giving us feedback कि ये नाम बहुत उसके पहले we were going with AM Media, वो consulting वाला काम जो चलता है, वो फिर बड़ा मार्केटियर कम्युनिटी वाला बन जाता है ना, मीडिया एंड उस तरीके का नाम. बट दिस ब्रांडस्लेन इज रियली इंटरेस्टिंग. मुझे एक पॉजिटिव, मतलब मुझे जो लगता है, आई एम जस्ट गोना टेल यू माय ओन ओपिनियन, जिस तरीके से I see the post from Faisal about his the way he writes and the way he puts it on social media. I get that vibe of a quality stuff, about like brand type का जो बनाता है ना. जैसे कि I consider, मैंने तो आज देखी एक स्टोरी में मैंने HP का लैपटॉप देख लिया, बट मैं तो एप्पल टाइप के गाय समझ रहा था. Faisal he is like, तो बोलते ना quality Apple type of stuff, high quality stuff, the way he writes. तो I think अब उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेगा, Apple लेना पड़ेगा फैजल को. लेकिन seriously, like your branding is like, in my opinion, it's really really good. The way you write stuff, the way you are representing your brand, I really really like it. Like I really like that. Appreciate it. Yeah, so वही thought process था कि I and Nick, like even before I met Nick also, even during my marketing days, I was always very interested in brands. Rather than anything, I always wanted to work with brands of multiple scales and different industries. So that was a sure thing in our mind that we want to work with brands only, and we wanted that thing, that word in our domain, in our branding, in our business's name as well. तो ये जो word था, actual बाकी सब तो available भी नहीं थे. We were just imperfection और speed के बीच का फिर वही था कि ये वाला सबसे सही है, feasible लग रहा है. So let's start off with that, and it's worked out pretty well for us, I think. और ये शुरू कब किया था तुमने? When you basically started doing it? 2019. Yeah. 2000. We got registered. We were trying to do stuff together without registration and all. But पहले as an individual, as a freelancer, you were doing that help of media buying और सारी चीजें चल रही थी पहले. अच्छा चल रहा था. फिर उसके बाद फिर we finally like decided कि now जब बड़े brands reach out करते हैं तो they want registered and established कुछ होता है आपके पास to all these things, so GST and all. So we registered in 19 December around. So अभी की बात होती है basically, मैं कहूँगा. Yeah, but I think the only thing I think a lot of people are going to see this video, तो basics बहुत सिंपल से रहते हैं. इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग और आपको सबसे बेसिक से स्टार्ट करना, लाइक मे बी रजिस्टरिंग कंपनी या कंपनी नेम फाइंड करना, तो जस्ट 3 आर्टिकल्स, 1-2 हेल्प वेबसाइट्स होती है जो जैसे कैनवा टाइप की होती है, या फिर नेम जनरेटर. तो आई जस्ट वेंट विद दैट. तो उसमें मुझे 2-3 मिले थे कि लाइक वेदर यू वांट टू हैव अ ब्रांडेड नेम, न्यू वर्ड, आउट ऑफ द ब्लू आप बना रहे हो उस वर्ड को, और यू जस्ट कंबाइनिंग 2-3 डिफरेंट वर्ड्स एंड देन कमिंग अप विद अ नेम. तो आई वाज एंड फैजल आल्सो गॉट मी इन टच विद अ लॉट ऑफ बाहर की एजेंसीज एंड बाहर की ब्रांड्स. तो आई फिगर ये जो क्लासी नेम्स होते हैं जो हम लोग रेजोनेट करते हैं, जैसे एप्पल है और समथिंग, तो दीज पीपल हैव वेरी यूनिक नेम, और बहुत सिंपल होता है बट यूनिक होता है, सिंगल वर्ड. राइट. या सो दैट इज व्हाट वी थॉट कि इसका ट्राई करते हैं एक बार को. Amazing. And when you got your first client, जो मैं बोलूं कि ब्रांड नेम के जब तुमने ब्रांड नेम को सेट किया, when you got your first biggest client? Biggest तो आते ही रहते हैं. आज also we close one of our biggest clients only. तो biggest तो is always the first one. The big मैं कहूँगा that मतलब एक ही time period था. It was like I think the summer of 2019. Even though उस time we were not going with the word Brandslane. It was the month of July, I remember. और July में we started working with a dairy company. और उसी के साथ साथ we also started working with an apparel brand, pretty huge one, right? So वहाँ से एक किक मिला हम लोग को, और वहीं से हम लोगों ने work distribution and client management वो सारी चीजें सीखी और करना शुरू की. But yeah, I think it was in the July of 2019 that actually we started getting traction. उसी टाइम पे के दरमियान में अपना LinkedIn पे भी धीरे धीरे अपनी personal branding शुरू कर रहा था. तो उससे भी धीरे धीरे traction and everything was coming.
which to be very honest, which is now converting. मतलब आज the work which you do actually 2 or 3 years back, they give you the return like after. The guy I converted today, he was he connected with me back in 2019, right? And he converted today in the afternoon. This is 100% like this is true because मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा जब I was actually doing the consulting part, one-on-one mentorship. जो लोग मेरे से 2017 में बात कर रहे हैं, they are converting in 2019, 18 and onwards because they keep on looking at you और वो अपनी एक जर्नी में, तो वो जर्नी में अभी वो खुद ही तैयार नहीं है, वो वहां पहुंचे ही नहीं है जहाँ पे वो कन्वर्ट होंगे. So and for that reason you have to be present on the platform itself, showcasing your stuff so that they keep getting that वो ना, क्योंकि ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, it's not conversion, it's about showcasing that you are available, you are there. Top of the mind recall मैं कहूँगा. किसी भी इंडस्ट्री में top of the mind recall establish करना. Exactly. फोन में एप्पल हो गया, आपका बिस्किट में आपका पार्ले जी हो गया, तो ई-कॉमर्स एजेंसीज में हमको ब्रांड ट्रेन करने का बहुत मन है. तो that's the way, because अगर मैं भी आज मैं सही बताऊँ, अगर मुझे आज इंडिया में कोई ब्रांड बनानी है तो मैं अगर उसे कुछ लेवल पे लेके जाके, और अगर मुझे आज के दिन कोई बोले कि नहीं मुझे एजेंसी चाहिए, तो I literally don't know any single agency right now in India. दो अब मुझे मालूम है कि you guys are doing it, एक मेरा दोस्त है वो कर रहा है, बट अगर मैं ब्रांड प्ले की बात करूं उन एजेंसी के बीच में, I know you guys are doing it better. तो मैं आई एम काइंड ऑफ बायस्ड टुवर्ड्स यू नाउ, तो मैं बोलूंगा नहीं यार मैं इन दोनों को जानता हूं, मैंने इन दोनों के तरीका देखा है करने का. मैंने तो प्रेजेंट होते हुए देखा है, हर दिन तुम आउटपुट दे रहे हो, कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, केस स्टडी डाल रहे हो. सो you're giving me you're giving me so many things कि मैं अभी नहीं कन्वर्ट कर रहा, बट आई एम काइंड ऑफ कन्वर्टेड ऑलरेडी जब भी मुझे एक्शन लेना है. लाइफ टाइम वैल्यू. राइट. एंड दिस इज एंड दैट्स द रीजन बोलते हैं कि अगर इफ यू आर इवन डूइंग योर पर्सनल ब्रांडिंग प्ले, और या अगर ओवरऑल ब्रांड प्ले, the most important thing is actually showing up and just keep on doing stuff and exactly. Eventually that will compound and आपको रिजल्ट मिलेगा उसका. Exactly वही चीज. तो यार जुलाई 19 में वो चीज शुरू हुई थी, तो अभी तक फायदा हो रहा है. Good. So अगर मैं बोलूं कि इस समय currently, so you are only working with Indian brands या you have US या बाहर की भी brands हैं? Right. So we have a very healthy ratio of India and abroad India clients. So right now we have clients from Australia, France, even US, Ukraine में भी clientele है, and India में तो अपना काफी सारा है ही है. So we are never limited to just geographies. We are very, we keep on expanding in terms of our clientele also. So yeah, we have clients in multiple nationalities, multiple industries. Right now as well, and in the past also, we have worked a lot in Ukraine, Scandinavian nations, Ireland, बहुत काम किया, Canada, US, you name it, उस देश में हम लोग कर चुके हैं, right? Okay, and how you guys divide your work? So who is like doing what? Right. So I think Nick, you have a very good answer on this already. Yeah. It comes very naturally. To be honest, we are very fortunate to have each other as co-founders because since we grew as हम लोग ने अपना skill sets एक दूसरे के साथ ही बनाया. Like we never knew anything. Even like in the marketing, maybe I was already doing stuff, and for something else like in sales, Faisal was already doing some stuff. But jo, as a business owner, we got to know each other and we started building each other's skill together. So it came very naturally. And right now also, we are at a position where he can also post content, I can also, but then he is super good at it, so he's going to take forward that. Sometimes, emails and proposals have to be made. So agar wo mera kaam hai, but then he knows the brand and he has the passion for the brand, that niche. So he will do that and I will help. So it comes very naturally, but overall, end pe, like I take care of the right now, the behind the scenes stuff, jo ki, pricing a proposal and then structuring things relating to growth, hiring में whatever we have to discuss, and जो culture वाला part होता है and all those things, plus the results and taking care of the brands. So me and Faisal are every day on Slack. So brands will never not have a day where they are not talking to us. So as founders, we make sure that founders are available on the Slack and they are talking. So we communicate with our clients on Slack channel. So that is there. But then other part of the things जिसमें कि एक outreach वाला part आता है, Faisal has an amazing personal brand. Content comes very natural to him. So he is superb at that. तो वो उधर चला गया. So it comes very natural. And अभी भी कोई नया task भी आ जाता है. तो it's now we are in a position कि we are matured कि कैसे करना है. And now if a new task comes, we will at least have the mindset to
figure out how it has to be done. So he can take it up if he has time. I can take it up if I have time. So otherwise, but that's Plus, basically, you have to understand each other's strengths in terms of, ये हमारा, I think हमारे agency का एक motto भी है, like if you can, your goal as the part of Brandslane is to save the other person's time. Right, तो अगर मुझे पता है कि Nick is good at something and I am not, I won't be like, I won't have that ego clash कि नहीं मैं ही करते रहूँगा, भाई तू कर ले. Right, if I know that हाँ मैं content अच्छा कर सकता हूँ, मैं दिन के 4 post लिख दूंगा, you focus on the things you need. If अगर जैसे client call है, I know Nick can save like half an hour by not talking to that client and working on an email sequence. I'll talk to the client, you work on that, right? So that's the mindset that we appear, every day to have in the agency. That's really great because मैंने एक पैटर्न देखा है हमेशा हर एक ब्रांड के अंदर, जिन लोगों ने भी आज तक स्केल किया अपना बिजनेस, दे हैव अ प्रमोटर एंड दे हैव अ ऑपरेटर. और इसके बारे में मैंने आज पोस्ट भी डाला था, एंड नाउअडेज आई एम कीप पोस्टिंग अबाउट सच स्टफ जस्ट टू हैव अ रिव्यू फॉर मी द नेक्स्ट ईयर की व्हाट आई वाज थिंकिंग ड्यूरिंग दिस टाइम. सो सीम्स लाइक कि Nick is the operator and you are the promoter. And you both have like complementary skills. It's nothing like you cannot do like दूसरे का काम है ऐसा कुछ, but still your strength is basically that. And मैंने हर एक ब्रांड को फॉलो इस समय जो भी कर रहा हूँ, मैं जिस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसको अगर पास से देखूँ ना, अगर उसको क्लोज एंड पे देखूँ कि अरे यार ये सक्सेसफुल क्यों हुआ, मतलब क्या रीजन था कि ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, तो हमेशा मेरे सामने जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया है कि अगर वो बंदा प्रमोटर था या उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग थी, उसने उसके ऊपर फोकस किया and he got people either as a co-founder or as a manager or someone who is actually doing the operational part, or someone is good at operation, he is bringing a co-founder of like marketing के अंदर so that he can actually do that. And this is super duper important. Otherwise अगर आप ये चीज नहीं करोगे, you are not gonna grow no matter what. मैं मतलब I have so many examples, like personally so many examples जिनको मैं बोल सकता हूँ कि their growth is just because of they understood कि हाँ कौन सा part उनकी स्किल क्या थी और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट जो उनको चाहिए थी दूसरी स्किल आइदर उसका को-फाउंडर लेके आया या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लेके आया अपने साथ, और तभी वो ग्रो कर पाया, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाया. Exactly. इट्स अमेजिंग कि तुम दोनों को ये चीजें पता है और पहले से तुम्हारा मैच अच्छा हो गया पहले से कि अच्छा मैं ये काम करूंगा. God has been very grateful in that, and even my mom says that Nick आया तो मतलब बाहर है kind of a thing. This is like the perfect match for in terms of business, and we were very fortunate on that. Like there has honestly in the last 3 years there have not been a single ego clash or कोई लड़ाई, कोई dispute, nothing. Like we know what we are aiming towards, and we are very synchronized in the way that we are doing it. तभी बहुत peacefully we are able to do everything and focus just on the work rather than on these. इसका मतलब ये है तुम दोनों ज्यादा मार्केटिंग कम्युनिटी के अंदर टाइम नहीं बिता रहे, सो दैट तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश नहीं हो रहा दूसरी एक्टिविटीज की वजह से, एंड यू आर फोकसिंग ऑन रियल स्टफ बिकॉज़ यू आर focusing on things which make you brands. You're already dealing with brands, तो तुम ऑब्वियसली उन चीजों का पार्ट नहीं हो जिसका पार्ट एक मार्केटिंग कम्युनिटी होती है, ज्यादा मार्केटर्स इंटरनेट मार्केटर्स हैं जिसका पार्ट. आप लोग ना गालियां ना देने लग गए इस वीडियो के नीचे कि अरे यार ये मार्केटर होके इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिटी की ऐसी बातें कर रहा है, बट दैट्स सो ट्रू. You have to shield yourself. That is one thing. You have to shield yourself. And one more thing that fortunately God graced us with that कि हम लोगों को competition वाला part कभी दिखाई नहीं, because since when you see e-commerce businesses and when you see agencies जिनको हम लोग ने aim करके even अपना नाम भी रखा, like from the very minute of things naming, we were seeing them do so many big numbers, and then the founder going ahead and buying their luxury stuff जो भी उनका material that whatever number we are able to do even right now, that seems very small. तो we are constantly कि next क्या कर लें, trending क्या चल रहा है, या फिर कौन सी brand कैसी कर रही है तो उसको outreach कर लें, right? So all those things keep happening rather than seeing कि okay what other agencies are doing in India, उनका delivery system कैसा है, किस type के लोगों को वो hire कर रहे हैं. It has never been like that. Or both of us like keep taking inspiration, like that is where it has come from कि all these जो bouncing off the work and everything है. We have had a lot of people who have provided us with not just technical knowledge कि कैसे करो, but उनको बस देख करके observe करके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं कि like how to do stuff. I was never a reader, but seeing other people read books and constantly be nerd about it, so it has come in me also. And then there was a person who owns a business here in India, here in Delhi, and I got to work with him when I was like quitting my job, and he was one of the first person who gave me some experience in stuff.
तो he was also having two co-founders, like one himself and one other person. So उनको भी देखते देखते how they are bouncing off stuff. So वो एक integrate होता रहा हम लोग। बहुत सही, बिकॉज ये जब शुरुआत में आपको ये चीजें एक्चुअली वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं तुम्हारे, जो फाउंडेशन बन रही है, तुम्हें मालूम पड़ रहा है अच्छा यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको देख के मैं क्या सीख सकता हूँ, और उसके ऊपर मैं एक्चुअली अपना काम कर रहा हूँ। मुझे पहले से मतलब मेरा माइंड सेट है कि मुझे मालूम है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल लगेगी, मुझे बंदा एक चाहिए होगा, मुझे किसी के साथ काम करूंगा, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, and that's how I basically grow. I'm looking at a bigger picture. Amazing. अच्छा, अब ना थोड़ा उससे रिलेटेड बात करते हैं, बिकॉज कई लोग सोचेंगे अरे यार ये मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, मार्केटिंग करता कौन है? तो सबसे पहले तो मुझे कुछ पता है, थोड़ा होता, लास्ट टाइम मैंने जब फैसल से बात की थी तो मुझे पता चला था, बट स्टिल जब शुरुआत करी थी तो कौन करता था मार्केटिंग, और अब कौन करता है? You mean marketing operations? for your clients basically. Clients. So शुरुआत में since there were limited number of clients और 2 लोग कर रहे हैं, तो we equally divided the things. तो clientele तो हमेशा equally divided. I still remember when मैं 2 clients handle करता था, और जिनके साथ निक की जेलिंग बेटर थी उनको निक individually handle करता था. That was way back in 2019. We were just a 2 people team at that time. Initially तो हमने ऐसी शुरुआत करी थी, and in terms of our agency's marketing, I used to focus on setting up by LinkedIn, Facebook, उस सब पे, and Nick was focusing more on the financial and operation side of things, as solidifying the email structures and setting up a hiring structure, किस तरह के लोग करने, तो उसके ऊपर वहाँ पे हमारा inclinations जो थे वो different थे. But yeah, overall client management was always on that. Now it is an entirely different game. I think 2019 से ही हम लोगों ने काफी delegate करना शुरू कर दिया था. We always used to hire freelancers also, even if we were not capable enough to, or we were not having time enough to delegate to a client. We were big believers of delegation. I think that has been a very good and important part of our success. Ki, get someone who knows his shit and pay them well. Pay them and ask them to do the things that you cannot or do not have the time to do. So delegation is something which is extremely important. उसी में फिर आपका ये team management और work culture set करना, वो सारी चीजें आ जाती हैं, right? तो सबसे पहला हायर 2019 में किया था आपने? सबसे पहला हायर आई थिंक वही जुलाई 2019 में ही हो गया था। और कहाँ से किया था वो पहला हायर? Just a Facebook group that was, वहाँ पे we did not even know how to hire people. तो वहाँ पे डाला, उसके बाद मिला एक person, we worked with them, it was good, the results were good, और it's because of these things result अच्छे थे, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर actively पूरे time मत्थापच्ची नहीं कर रहे थे. Somebody was working with us who knows how to do it as well. So yeah, that is how it all summed up. So how you okay, थोड़ा और इसको थोड़ा डीप डाइव लेके जाते हैं, because कई लोग ऐसे होंगे जो ये करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कैसे करें. How you vetted that guy कि जिसको तुमने करने वाला था, how you basically validated that guy कि he knows his stuff, how you did it? Right. हम लोगों ने एक चेकलिस्ट बनाई थी. राइट, तो क्वाइट फ्रैंकली निक को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था ई-कॉमर्स में, 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस था. तो आई टुक अ लॉट ऑफ, मेरे लिए तो इनिशियली रनिंग द एजेंसी वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल. I was learning a lot about the industry from Nick, and apart from my other agency gigs as well, जो उस टाइम पे मैं कर रहा था. बट मैंने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से एक मार्केट, एक मीडिया बायर को असेस किया जाता है. वी हैड अ चेकलिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग कि कितना स्पेंड उनका होना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए उनको, क्या लहजा होना चाहिए उनके किसी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन बताने का, हवा में बात कर रहा है तो उसको कैसे जज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे पिकअप करने लगा. एंड इट वाज वेरी फनी, निक ने भी उसी मीडिया बायर से बात करी थी और मैंने भी उसी मीडिया बायर से बात करी थी. एंड वी फाइनलाइज्ड ऑन हिम एंड आई टोल्ड हिम, या दिस इज द गाय. ही इज लाइक, आई जस्ट टॉक टू हिम एज वेल. तो लाइक फिर तो डन है. So that was the first person we finalized for that specific project. So कितने interviews? Yeah, Nikhil. I was saying it kind of grows also. Starting of the business में आप जिस तरह से hire करते हो, जो चीजें देख करके, it's purely related to results. Yes. Purely. And जैसे जैसे आप grow करते जाते हो, then you start to understand कि एक result delivery के लिए anything, like even if it is packaging in e-commerce या फिर agency में ad चला करके result दिखाना, there are other stuff also which accumulates to like customer कितना satisfy हो रहा है, customer is the user of the product या फिर हम लोग का clients e-commerce agency stuff में. So now we take a look at कि कितना ज़्यादा friendly है person when he is replying, कितना ज़्यादा temperament उसका अच्छा है when client is very pissed off कि okay, no, nothing is going wrong and what is going on,
रिजल्ट्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अभी तो बहुत सारी चेकलिस्ट होती है बट प्योरली रिजल्ट्स होते हैं. और कैसे हम लोग भी इट हैज बीन वेरी like we sat down on this couple of months back and we realized ki major of the people that we have hired, they have been in touch with us for a longest of time. Matlab the first hire we did, major hire like full time employee and all, he has been in touch with us for I think many months. And फिर उसके बाद he got to chat with us. कब फर्स्ट हायर तो हम लोग का पोस्ट से हुआ था डायरेक्टली. आई पोस्टेड इन अ ग्रुप एंड देन आई पिक समवन. But then the second hire and the major things when started rolling forward for Brandslane, tab jaake long term people who are connected with us, they started talking to us. And wo people have to like you as a person first and then they will say ki okay let's work for him and believe in your work. And believe in your work. Okay, तो जो पहला हायर लिया था उसको मतलब कितने लोगों को आउटरीच किया था या कितने लोगों तक पहुंचे थे तब जाके वो फर्स्ट हुआ था, या पहला ही था तो वो हो गया एकदम? I think first हो गया था, like 3 people I got in touch with, and within those 3 people I think we hired one. और वो होता है स्टार्टिंग में कि ज्यादा लोग रीच आउट भी नहीं करते, तो जो आपको सबसे पहले दिखता है आप सोचते हो कि ये बेस्ट है. तो आपके क्या और वो लक था कि वो सही निकला या क्या बोले उसे? लक हैज अ बिग रोल. या लक था कि वो अच्छा रिजल्ट प्रूव हो गया. एंड प्लस द फर्स्ट ब्रांड दैट यू टॉक्ड अबाउट की सबसे बड़ी ब्रांड उसी टाइम पे थी, उसकी केस स्टडी काफी अच्छी आ गई थी. लाइक इट वाज अ वेरी बिग ब्रांड अपैरल नीश में इंडिया में. And उसकी केस स्टडी को then I was behind the scene working for developing the proposal part, developing the finance part, developing pricing strategies कि कैसे pitch करेंगे, क्या करेंगे और क्या documents केस स्टडी के जाने चाहिए and all those things. And उसको juice out अच्छे से using the case studies and in a certain way. Faisal did on social other things, knowledge based पे भी he shared and all those things. So things started rolling forward. But first employee तो lucky था. And then लास्ट उसके बाद के जो एम्प्लॉइज हुए हैं दैट हैज बीन प्रीटी मच ऑन फैजल, क्योंकि उसकी ब्रांड से काफी लोग टच में हैं. तो दे व्हेन वी पुट आउट कंटेंट की ओके ठीक है वी आर नीडिंग समवन, तो काफी 2 साल से जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उस समय पे काफी मंथ से जो फॉलो कर रहे थे, दे स्टार्टेड लाइक सेइंग कि ओके लेट्स हैव अ टॉक. ओके, और जब अब जो हायरिंग चल रही है तुम्हारी कंपनी में, और आई सी दैट यू इवन पोस्टेड रिसेंटली एज वेल, तो लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारी हायरिंग चल रही है, हाउ यू बेसिकली हायरिंग पीपल, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस चीज के ऊपर हायर कर रहे हो? पहला तो तूने बोला कि इट वाज जस्ट प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड के आउटपुट आ रहा है, तो लाइक ठीक है बंदा सही है. हाउ यू आर डूइंग इट नाउ? See, performance तो will always play a part. You should be knowing how to do stuff. It doesn't need to be in terms of result, you don't need to have world-class results, right? But as an agency, I'll give you my ground as an agency, that a person should be knowing, basic client engagements, how to interact with the client, how to abate a situation. अगर client नाराज है तो उसको किस तरह से आप portray कर सकते हो, या फिर किस तरह से उसको solve कर सकते हो. Team management, work culture में basically fit होना चाहिए, right? We are not running an office here, we are running a remote culture office. So how does a person come off when you have that first conversation? तो एक तो वो intuition भी आ जाता है काफी, इतने लोगों से बात करने के बाद, इतना टाइम ये चीज करने के बाद एक intuition भी आ जाता है कि will this person be a good fit or not, right? You see him talking to day in and day out for your clients or not, right? उसके अलावा थोड़ा बहुत experience, how many brands have you worked with, how does the person assess a brand, तो results के अलावा obviously basic results तो उनके पास होने ही चाहिए. कुछ ऐसे लोग टकराए जो हवाबाज थे? बहुत. अरे मैंने इतना किया है और 100K 150K इट्स लाइक पीस ऑफ केक फॉर मी. ऐसे हवाबाज भी थे और कुछ वैसे वाले थे जो छुपे हुए भी होते हैं कि उनको थियरी अच्छे से आती है, लेकिन फिर उनको जब काम पे डालो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वो वाले भी मिले थे हम लोग को. और जिनको मतलब उनको लिंगो सब पता है, हाँ, लेकिन वो जब काम करने आएंगे तो इट्स नथिंग, साइनाइफेशन. एग्जैक्टली. Hiring में you can never be 100% sure. You have to risk it. Basically, you will only like see them on floor काम करते हुए, उसके बाद पता चलेगा. जी. अच्छा, last time you told me about a website, AngelList, right? हाँ. So how many guys you have hired from that website? AngelList से मैंने I have talked to a lot of people through AngelList, but for me personally, I've never hired AngelList पे. और अब because of the online traction and everything, I don't even require AngelList as such to hire. But yeah, उससे लोग बहुत अच्छे आए थे.
above our price range भी at times आए थे उस टाइम पे जब मैंने पोस्ट किया था. But yeah, very well qualified people. I believe in marketing or putting some things out where people in need are looking for. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे qualified people who are looking for a remote position in that specific opening जहाँ पे है वहां पे डालो तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे. क्योंकि ये फील्ड ऐसा है मीडिया बाइंग का that a lot of people are not into the job culture. काफी सब अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहिए. यू नीड टू फाइंड द राइट माइंडसेट. जो ये एक्चुअली मेरे क्वेश्चन पूछना चाहिए था तुमसे कि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है. कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो बिकॉज़ सब लोगों को तो अपना धंधा करना है, अपना बिजनेस चलाना है. हाँ, तो आप यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय पर्सोना. काफी सारी चीजें होती हैं. एवरीबॉडी इज नॉट लुकिंग टू ऑलवेज रन अ बिजनेस. सम पीपल जस्ट वांट पीस. तो आपको वो लोग चाहिए जो एक बिजनेस मे बी चला चुके हैं या फिर एम्बिशियस हैं. यू नीड एम्बिशन बट यू नीड पीपल हु आर वांटिंग टू वर्क फॉर मीनिंगफुल और अ पर्पसफुल क्लाइंट है, राइट? तो वो सारी चीजों को लाना साथ में जज करना बहुत टाइम लगता है. बट वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव बीन एबल टू डू दैट. आई टेल यू, मेरे साथ तो जब भी मैं पोस्ट डाल देता हूँ मेरे पास एप्लीकेशन 100 आती हैं, लेकिन उनसे जब भी मैं बात करता हूँ ना, वो पता है बस मैंने 3 महीने बाद अपना शुरू करना है. एंड मैं बोलता हूँ मेरे पास जॉब करने में क्या आएगा, 3 महीने में मैं उसे सिखाऊंगा और 3 महीने में वो चला जाएगा. मतलब आई लिटरली टेल यू, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है या फेसबुक पे पोस्ट डाला है, आई गेट फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन. और मुझे लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि यू विल गेट अ पर्सन लाइक यू हैव अ लिटिल बिट फॉलोइंग, तो वहीं से मिल जाएगा. एंड आई वाज लाइक, मैंने बहुत बार ये ट्राई किया है और हमेशा मेरे पास यही चैलेंज आता है. जिस भी बंदे को मैं इवेल्युएट करता हूँ, जब मैं उससे पूछता हूँ व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, क्या सोच रहे हो, ही और शी एंड्स अप सेइंग कि मुझे ना अपना शुरू करना है, तो मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ और मैंने अपना शुरू करना है. आई अंडरस्टैंड कि सब सीखने के लिए आते हैं, बट ले लिटरली टेल यू, ये तो अच्छी बात है कि ऑनेस्टली बता देते हैं कि मुझे तो अपना शुरू करना है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. तो मुझे आपसे सीखने को मिल जाएगा, उसके बाद मैं अपना शुरू करूंगा. एंड आई लाइक, अब मैं क्या हायर करूंगा इन लोगों को. डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्नी में लोग होते हैं. आई मीन जो आपने पहले बोला था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो एक स्टार्टर होता है और एक इंटीग्रेटर होता है या फिर करता है. तो वो वाला जजमेंट पार्ट भी आता है जब आप लोगों से बातें करते हो हायरिंग के लिए. तो आई थिंक वो समझ में आ जाता है कि इनका लैकिंग फैक्टर भी क्या है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अभी पहले तो काफी डिफरेंट तरीके से हायरिंग करते थे, अभी डिफरेंट स्किल सेट्स के लिए कर रहे हैं. तो अभी उन लोगों को भी पता होता है उनका लैकिंग पॉइंट क्या है. So either they have maybe started an agency or they have like done something on ads but they are feeling better in communication, या फिर उन्होंने ads चलाया लेकिन उनको पता है कि वो creatives बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं because they know that mindset of direct response creatives. तो उनको पता होता है, तो उनको right position में अगर आप shift कर दो, या फिर उनको फिर लाइक वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात आ जाती है कि अगर आपको खुद का ही प्रोडक्ट करना है, खुद की एजेंसी करनी, तो हमारे साथ क्यों करो. तो एजेंसी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं मूविंग वाले, की सेल्स भी एक पार्ट है, एंड देन फाइनेंस मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीजें. कोई भी बिजनेस होगा आपको भी पता है. इट्स इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी वेरी फॉर्मल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ, चाहे बैकएंड पे तुम्हारा जैसी मर्जी हो, लेकिन जहां क्लाइंट इन्वॉल्व हो गया वहां पे फिर वो सारी फॉर्मल चीजें होंगी जो in my opinion as an entrepreneur I don't want it personally, because मैं काम कर चुका हूँ ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है ना. I really don't like it personally. तो मैं उस लाइन में नहीं घुसना चाहता. Maybe that's the reason I never started a agency for my stuff, because मेरे पास कई बार emails अभी भी आती हैं कि we need help in setting up our brand etc, हमें marketing करवानी है etc. तो मैं बोलता हूँ I can consult you but I cannot provide you the services because that's not what I am like. और मैं उसके साथ जलब भी नहीं कर पाऊंगा ना, मैं आप लोगों के साथ बात कर पाऊंगा, because I do stuff at my own pace and और मैं भी शायद बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा and you won't be able to do it. तो that's really important. वहां से भी मेरे ख्याल से फिगर आउट हो जाता है कि अच्छा पर्सन क्या करेगा. राइट. थोड़ा सा उनका फ्लॉज देख करके समझ में आता है कि वेयर दे कैन लैक एंड वेदर दे कैन बी लॉन्ग टर्म प्लेयर और शॉर्ट टर्म प्लेयर. और फिर उसके बाद जब वो कल्चर ज्वाइन करते हैं आपका, आई थिंक मेन डिसाइडिंग फैक्टर आता है. अगर उनको सब कुछ मजा आ रहा है यहाँ करने में, फ्रेंडशिप भी मिल रही है और वो एजेंसी वाला वो टॉर्चर भी नहीं मिल रहा है जो इंडिया जिसके लिए फेमस है थोड़ा सा, लाइक नॉट टू go deep into it. It's a lot of pressure in the B2, मतलब जहाँ पे क्लाइंट्स वाला काम आता है वहाँ बहुत प्रेशर होता है. Exactly. तो अगर वो सारी चीजें उनको नहीं मिलेंगी तो they will stick around longer. Maybe अगर 6 months में अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो 8 months में करेंगे.
तो इट्स ओके, एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा रुके, अगर नहीं एटलीस्ट नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम, तो एटलीस्ट लाइक मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अरे इससे एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया दिमाग में कि इंडिया के क्लाइंट्स के साथ यू गाइस वर्क, और इंडिया के क्लाइंट्स बड़े फेमस हैं चिंदी चोरी के अंदर, लिटरली, बिकॉज आई हैव सीन इट पर्सनली। अगर मैं कोई मेरे पास आता है इंडिया में और मुझे बोलता है कि आई वांट टू डू दिस, और मैं उसे बोलता हूँ आई एम गोना चार्ज यू दिस मच एंड ही लाइक he get like oh, और दे आस्क, और जो भी सस्ता क्लाइंट होता है व्हाट आई हैव सीन इज दे आस्क मोर, और जो महंगा क्लाइंट होता है दे नेवर, because they are completely fine, they have seen the bigger picture। और मैंने देखा है, जो the one who pays the most amount of money they will bother you the least, and the person who pays you the least bothers you the most। तो ऐसा भी होता है तुम्हारे साथ पर्सनली? मतलब हुआ है, होता है नहीं बोलूंगा। अगर आप मतलब फ्रॉम ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर पर्सन आपको ज्यादा पैसा दे रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो ज्यादा पैसा बना भी रहा है, उसके पास ना टाइम है ना इतना वो डरता है, राइट? तो जो कम दे रहा है उसके पास कम है क्योंकि वो कम बना रहा है, राइट? तो उसको हर छोटी चीज में शटरिंग होगी, डर लगेगा, करूं या ना करूं। इंडिया में कुछ वो वाली बात तो बिल्कुल सही बोला तुमने, बट आई टोटली बिलीव कि इंडिया में जो ज्यादा बना रहे हैं उनमें भी कहीं ऐसे चिंदी बिल्कुल चोर लोग बैठे हैं जो निकालना नहीं चाहते। दे वांट लाइक 15,000 में भाई हमारा सारा काम कर दो, 360 डिग्री मार्केटिंग प्लान चाहिए पूरा। तो जब और मुझे रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन 15,000 दूंगा मैं। हाँ, तो जब वो फाइनेंशियल सिंक नहीं बैठता है तो बात आगे जाती ही नहीं है। जब भी हम कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं, वी आर ऑलवेज, हम उसमें भी एक चेकलिस्ट लेके जाते हैं। अब तो रट गई है, बट देयर आर ऑलवेज रेड फ्लैग्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, कि ये बंदा किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपने ब्रांड को, और क्या इसका विजन है। अगर बंदे के पास विजन है और अगर सारी चीजें सही बैठ रही हैं, एंड स्टिल द फाइनेंशियल रिस्क feels like something that I want to go for the bigger picture, we take that. But अगर वो सिंक ही नहीं बैठ रहा है, if I'm not even going to enjoy talking to the person on a weekly basis in terms of reporting and everything, then आप ज्यादा पैसा भी अगर दे दो ना, तब भी मजा नहीं आएगा। कभी कॉम्प्रोमाइज किया है उस चेकलिस्ट या उस कुछ फंडामेंटल चीजों के साथ? कभी भी किया है। और उसमें और इवेंचुअली क्या हुआ फिर उसके बाद? जो होना होता है, at times things do not always go well, you know, either professionally or result wise. So obviously, at times you know that this might not go well, but you need to do what you need to do. But yeah, majorly we are very, very strict and very rigorous about the kind of people and brands we let in. अगर आप, if you have seen, I'm pretty sure you have seen BrandStream's, brand portfolio kind of, कि किस तरह की brands के साथ हम काम करते हैं, तो you can see the quality factor और X factor basically जो हम brands के अंदर ढूंढते हैं before we start on board them, right? तो वो चीज काफी apparent हो जाती है, and that is the third reason आपका जो employee का जो अभी retention का जो बात किया है हमने कि वो अपना business ना start करे, when you build purpose into their work, when you say to your client, to your employee that एक Shark Tank winner client आपके पास आया हुआ, मैं बोलने वाला था, मैंने ना अब तो now you have a sticking factor, हमारे पास Shark Tank वाला client है, right? When you say कि yeah, another client of ours was the official footwear partner of Femina Miss India, right? When you say कि हाँ इस client की दुकान पे तन्मय भट्ट आया अभी हमारे client, right? They appreciate that, they look at you in a different way, and that is as the boss or as the person who they might take some time to reach to that stage. They have right? that वो बोलेंगे ना social, उनको kind of एक मैं बोलूँगी शो ऑफ करने का भी मौका मिलता है। Exactly. और एक दूसरे के सामने बात करेंगे, अगर एम्प्लॉइज बात करेंगे, देखा बमर ये मेरा क्लाइंट है। A person wants to work for a Google or an Apple because they get to make history, right? हाँ। So that is what you have to. एक बहुत famous छोटा सा anecdote है. I'm just going a little bit off here. When Tim Cook 1997 में या 6 में he was working for काफी बड़ी company Compaq के साथ काम कर रहे थे. He was one of the biggest players in आपका Silicon Valley उस time पे, one of the best names, Tim Cook, for the operations and everything. और उसने 1 घंटे की मीटिंग करी अपने CEO साहब के साथ, स्टीव जॉब्स के साथ। उस टाइम पे the company Apple was 90 days from bankruptcy, उस स्टेज पे था वो, right? Okay. And 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में he left everything and joined Apple. So I was always thinking क्या बोला होगा उस बंदे ने कि इतना settled और sorted आदमी who is today the CEO of the company, and good call for him to join Apple now. But such a
पुरानी कॉल ना, मतलब वो भी ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी और एग्जैक्टली। तो सीईओ तो मैं वो अब जाके बना। जब वो कहते हैं ना कि मैंने आपको कहा कि फाउंडर का विजन स्ट्रांग होना चाहिए जो हम असेस करते हैं व्हाइल ऑनबोर्डिंग में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इफ द विजन इज गुड इनफ दैट ही कैन सेल मी ऑन हिज ब्रांड कि आप मेरी मार्केटिंग करो, राइट, I'll do that if you have the guts, the gusto as well as the grit to be in the market and be the market leader. If you want me to market for you, I will, right, and my agency will. But वो विजन होना चाहिए फाउंडर के अंदर, दैट इज द एक्स फैक्टर वी ऑलवेज लुक फॉर, और सारे क्लाइंट्स में वो चीज माशाल्लाह दिख भी रही है। इट टेक्स टाइम, स्लोली स्लोली डेवलप होता है, बट आपका विजन स्टार्टिंग से अगर क्लियर हो कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड। मेरे साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो बात बोली ना, ये ओवर टाइम आती है, ये आपके पास एक्सपीरियंस से ही आती है। लेकिन वो शुरुआत से आपको रोड तो पता चलना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना है। अगर यू आर वांटिंग टू बिल्ड अ ब्रांड, ई कॉमर्स ही आपको करना है, एंड यू नो कि आपको किस टाइप की लाइफस्टाइल ब्रांड बनानी है, या आपको सेल्स ज्यादा आती रहे, तो सेल्स ज्यादा आती रहे तो आप एड्स में ज्यादा स्पेंड लगाओ, इट्स ओके। बट देन अगर आपको वो नहीं करना है, आपको एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनानी जिसके बारे में लोगों को पता हो, लोग बात करें, तो यू हैव टू डू अ लॉट मोर, यू हैव टू बी मोर प्रेजेंट इन ऑल दोस थिंग्स। तो वो अगर विजन स्टार्टिंग से क्लियर होगा तभी आपको रास्ता पता रहता है, अदरवाइज तो यू नो देयर आर 100 डिफरेंट थिंग्स कमिंग एवरी डे। तो आई थिंक यहाँ पे वो रिसर्च वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको शुरुआत में थोड़ी सी रिसर्च करनी जरूरी है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। आज मतलब मुझे आज आई फिगर्ड आउट करण बजाज इज द व्हाइट हेड का। मुझे आज मालूम पड़ा, पता नहीं कहाँ से मेरे उसमें आ गया, न्यूज फीड में आ गया, एंड आई वाज लाइक मैं हुक हो गया उसके उस पर्टिकुलर जो भी मैंने उसका पोस्ट देखा, वहां से मैं उसके यूट्यूब चैनल पे पहुंचा, वहां से मैंने उसकी यूट्यूब वीडियो कंज्यूम करनी शुरू करी। तो वहां से मुझे कुछ उसकी एक दो वीडियोस ऐसी जो करेंटली मुझे चाहिए एट माई जर्नी, तो मैंने वो देखनी शुरू करी, और मुझे वहां से बहुत एक अच्छी चीज उससे आइडियाज मिलने शुरू हुए कि वो किस तरीके से चीजों को सोच रहा है। और उसने जब अपनी ब्रांड के बारे में सोचा तो उसने क्या क्या क्वेश्चंस अपने सामने पहले रखे, एंड आई वाज लाइक यार ये वैलिड चीजें हैं, ये हमें नहीं पता थी। और जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ही वाज द सीईओ ऑफ डिस्कवरी, एंड उससे पहले वो कई चीजें कर चुका था, तो आफ्टर 40 years ऑफ प्योर प्रोफेशनल प्ले ही लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उसे मालूम पड़ेगा कि अच्छा मुझे पहले ना पेन और पेपर के ऊपर ये चीजें लिखनी जरूरी है, वो पिक्चर। और मे बी जो हम यंगस्टर्स हैं, वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, तो वी डू द एक्शन प्ले कि भाई काम कर लेते हैं, गलतियां करेंगे, हमारे पास एज है, हम फिगर आउट करते जाएंगे उन सब चीजों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल ट्राई टू कंज्यूम नॉलेज एक बहुत ही डिफरेंट रॉन्ग स्टेज पे, रॉन्ग क्या कहेंगे, वो ऑड होता है, एंड यू डोंट गेट टू नो अनलेस यू हैव क्रॉस दैट स्टेज। तो पीपल शुड कंज्यूम नॉलेज नॉट फॉर यूजिंग इट बट फॉर कंज्यूमिंग इट। क्योंकि जब आप अभी यू आर इन योर जर्नी, यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दैट नॉलेज राइट अवे। आप अभी नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, तो अगर आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप ज्यादा डिफरेंट वे में करोगे, आपको ज्यादा रिटेन होता है। तो आई थिंक पीपल व्हेन दे लुक एट यूट्यूब, दे लुक एट कोरा के डॉक्यूमेंट्स या कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ई कॉमर्स के लिए, इफ यू डिसाइड टू डू ई कॉमर्स, इफ यू डिसाइड टू डू एजेंसी, तो बस जितना ज्यादा पढ़ सको। And Faisal has always, like, we get to talk to a lot of people, so Faisal has this कि he is not shy of telling people कि do job first, get an experience। अगर आपका I totally believe that, because मैंने जब भी लोगों के साथ काम करता हूँ ना, तो वो एक्सेल के ऊपर हम we need Excel all the time, है ना। और मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरा होता है कि मैं उसको थोड़ा मैनेज करूँ, एक्सेल के ऊपर बना लूँ, सो दैट नंबर्स सब कुछ दिखते रहे एक जगह पे। अब मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, मान लो मैं अपने किसी टीम मेंबर को बोल रहा हूँ, यार तू एक काम कर, ये सारी चीजें ना बना ले, इसके ऊपर लिख ले, और इधर से तेरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मुझे मालूम पड़ता है उसके पास वो स्किल नहीं है, और उसने सीखी नहीं है, उसको जरूरत नहीं पड़ी कभी, उसने सोचा ही नहीं उस बारे में। और मुझे लगता है कि यार इस वजह से तो इस बंदे को जॉब करनी चाहिए थी, बिकॉज एटलीस्ट वो ये तो सीख जाता। अब मेरे साथ ये है कि मैं 4.5 साल मैंने डेटा एनालिटिक्स की कंपनीज में काम किया है, रिसर्च की कंपनीज में काम किया है, और एक्सेल जो चीज थी वो सबसे पावरफुल टूल था। दो आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल इट इज, एंड मैं अपने काम चलाऊ चीजें कर लेता हूँ उसके अंदर। और मैं लगता है यार ये चीजें तो आनी चाहिए, और इसके लिए एक बंदे को ना जॉब के पे एटलीस्ट इसके लिए तो जाना चाहिए, और किसी के लिए जाए ना जाए। और आज के टाइम पे तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम। मुझे मालूम है कि इफ यू आर अ फाउंडर, इफ यू आर डूइंग समथिंग, इवन इफ यू गाइज लाइक फॉर योर ब्रांड, कोई बंदा अगर तुम्हें आके बोले कि यार मैं आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, जस्ट लाइक मुझे काम करवा लो, मुझे ये मालूम है कभी ना कभी अगर वो तुम्हारे पीछे 12 महीने पड़ा हुआ है ना, तो एक महीने में एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी किसी पर्सन की, एंड यू आर रेडी टू टेक दैट पर्सन। और वो बंदा अगर काम करने वाला है,
वो अपना वो बोलेगा मैं अपना 120% देने वाला हूँ, उस बंदे की जो लर्निंग होने वाली है वो इतनी तो लर्निंग होने वाली है, बिकॉज वो रियल टर्म में सीखेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली जो वो कभी भी किसी प्रोफेशनल या मैं बोलूं टिपिकल जॉब में नहीं सीखने वाला, बिकॉज तुम्हारे साथ काम करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा फेसबुक एड्स क्या होती हैं, गूगल एड्स क्या होती हैं, उसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन क्या हो रही है, बिकॉज यू गाइज विल बी लाइक 100% रेडी कि अच्छा यार तू ये सीखना चाहता है, तू आ जा यार, कोई दिक्कत नहीं, तू ये भी देख ले, चल देख ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास फुल स्टैक कोई टीम वाला प्लेयर आए जो सीखने की ईगर हो, अपना काम करे अच्छा, लेकिन दूसरे भी काम में सीखना चाहता है, वी आर रेडी टू डू इट। राइट। तो आई सी दैट कि ये चीज है जितनी जल्दी जो हमारे यंगस्टर्स स्पेशली 18-19 साल वाले हैं ना, वो बोले ना कि मैं 4 साल तो मेरा कॉलेज चल जाएगा, मुझे तो 4 साल एजेंसी में फ्री में काम करना है, लेट्स सपोज वो फ्री में काम करने के लिए तैयार है, बट 4 साल बाद यू विल बी पेइंग हिम इन लैक्स। एग्जैक्टली, मतलब पॉइंट ये आ जाता है कि आप जब नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो तो जो आपको एक्सेल बनाने वाली है या फिर जो मोमेंटरी टेक वाली नॉलेज है वो तो आप तुरंत यूज करके तुरंत सीख लोगे, लेकिन इवन द बिगेस्ट ऑफ पीपल लाइक founder of Nykaa and all, they were also in corporate jobs pehle, and then from there they did something big. So not even the beginner, like people who have matured their journey or they already know CEO stuff and all those things, finance, CEO जो भी करना है, they are also doing some experience and फिर उसके बाद से they are taking it forward. So you can very well they are taking their journey in a different way, because exactly most of the people वो job को इस तरीके से मान के चलते हैं कि यार हम ना यहाँ पे कुछ सीखने नहीं आए, हमने तो सिर्फ बस काम करना है, जस्ट सैलरी। बट अगर आज मुझे कोई बोले ना कि यार क्योंकि उस समय नॉलेज भी नहीं थी, अपना पिक्चर भी क्लियर नहीं थी जो भी थी, लेकिन अगर मुझे कोई आज बोले कि तू वापस चले जा 2012 में और अब तू सोच के क्या करेगा, तो मैं बोलूंगा यार मैं क्या करूंगा ना, मैं टफेस्ट टास्क को उठा लूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है वो टफेस्ट उठाने से ना जो मेरी जो ग्रिलिंग होगी ना, वो मुझे 2020 में जो मिलेगी ना, उसका मेरे को आउटपुट बड़ा खतरनाक मिलने वाला है। एग्जैक्टली सेम हैपेंड विद मी, मतलब मेरा जब ई-कॉमर्स मैंने एक बार स्केल करके फिर एक बार ड्रॉप आया, और ड्रॉप के बाद व्हेन आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड देन अगेन आई स्केल्ड अ लिटिल, तो आफ्टर दैट जो सेविंग हो गई, तो आई न्यू कि अभी इसको आई हैव टू यूज इन अ बेटर वे, बिकॉज ये जो पीछे वाला टाइम गया है अगर ये कंटिन्यू हो गया तो आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। I did the same. It happened with me as well. So yeah, I can count on that. Yeah. So agency में it helped a lot. Like results अपना दिखा करके कुछ first edition couple of gigs मिल गए, and then I knew कि कैसे present करना है। वो जो sales हम लोग ने कभी, मैंने और फैजल ने कभी भी sales सीखी नहीं, though we always keep watching sales के videos and everything, जो उसको हम लोग को nurture करता रहता है, sales की books करती रहती, but otherwise proper corporate जो sales होता है कि आपको product के बारे में जानना भी नहीं है and you can sell it, वो हम लोग ने कभी कॉर्पोरेट सेल्स वाली टाइप की चीजें की नहीं है। इट्स ऑल जस्ट कि वी हेल्प द पीपल ऑन कॉल एज अ कंसल्टेंसी एंड देन पीपल कन्वर्ट। अब उसी को थोड़ा सा हम लोग ने रिफाइन कर दिया, तो इट जो एड्स उस समय पे चलाए थे, इट्स हेल्पिंग राइट नाउ। सो मेरा अगर इफ यू वांट टू से कि ई कॉमर्स मेरा फेल हो गया, आई हैड टू किल इट, स्टॉप इट, वो स्टोर सेल आउट कर दिया, तो बट वहाँ की नॉलेज देन एजेंसी में इट गिव अस द इनिशियल, और क्या इनिशियल के अभी भी हम लोग उसी से सब कुछ स्टार्ट किए, उसी से सब आगे कर रहे हैं अभी। अमेजिंग है यार। मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत हैं, पता नहीं कितना लंबा जाएगा, और लेकिन स्टिल एक दो इंपॉर्टेंट है वो तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो टेल मी दिस यार कि व्हाट्स योर फॉर्टे इन मार्केटिंग? इज फेसबुक, गूगल, या लाइक यू आर डूइंग ऑल? एंड इफ यू आर डूइंग ऑल, सो यू हैव एक्सपर्ट्स हैं तुम्हारे पास हर फील्ड के, so how you are doing it? Right. So we focus on the final number. Right. हमारा फोर्टे अगर आप कहेंगे क्या है, तो दैट इज रिजल्ट। राइट। सो अगर गूगल एड से वो हो सकता है, फेयर इनफ, या फेसबुक से हो सकता है, फेयर इनफ। वी आर आल्सो डूइंग स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, वी आर डूइंग दोस फॉर आवर क्लाइंट्स। बिंग एड्स सेटअप कराया क्लाइंट का भी। राइट। सो वी focus on getting our clients to the final number, because you know, firstly to not productize my or commoditize, basically to not commoditize my agency कि हाँ ये तो Facebook चलाते हैं, right? We are not that agency. We are the agency which bring results, right? So वो चीज हमेशा mind में रहती है whenever we are talking to the clients as well. So जो जिस माध्यम से बेस्ट रिजल्ट्स आपका जल्दी से जल्दी आ सकता है क्लाइंट का विद मोस्ट कंसिस्टेंसी, दैट इज द रूट वी टेक. सो ऑब्वियसली दैट विल रिक्वायर अस टू हैव एक्सपर्ट्स एज वेल. सो वी, एज आई सेड, वी आर वेरी पिकी अबाउट द पीपल दैट वी लेट इन एज वेल. So yeah, the person that we have in house, the people that we have in house have good amount of experience in multiple platforms. That is kind of like a must.
to join So brands. who basically decide कि कौन सा platform choose करना है? Like is it like the marketing expert you have वो decide करता है कि अच्छा ये the team. We work in a very collaborative fashion. We have a huddle. We talk about whenever we are launching any client. We have a huddle late night में जब भी time मिलता है हम लोग को कि what is going to be the spend distribution for this client, right? कितना Facebook पे जाना चाहिए based on our experience. समझ लीजिए apparel brand है तो I know that it has a visual appeal. So let's focus more on Facebook and lesser on Google, but let's have a brand search campaign on Google and shopping campaigns, right? अब समझ लीजिए अगर कोई different type का client है, let's say फार्मास्यूटिकल, मैंने चलाया नहीं है फार्मास्यूटिकल, जस्ट अज्यूम कि उनकी सर्च क्वेरी ज्यादा आएंगी, राइट? तो स्पेसिफिक एओवी में जिसको मैं फेसबुक पे या तो जिसका सीपीए में नहीं ला सकता हूँ, मुझे पता है कि यार 500 रुपए का प्रोडक्ट मैं प्रॉफिटेबली नहीं बेच पाऊंगा फेसबुक पे, देन वी टेक द गूगल राउट विद अ स्ट्रॉन्गर स्पेंड परसेंटेज, राइट? तो एक्सपीरियंस बिल्ड्स दैट along with collaborative teamwork obviously. तो वो एक इनिशियल जब हम लॉन्च का डिस्कस करते हैं कि दिस इज व्हाट वी विल डू, उसके बाद तो सब ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हाँ एक चैनल अच्छा चल रहा है तो यहाँ का स्पेंड उठा के इधर कर देते हैं और उस पर लेस फोकस करते हैं. वी हैव हैड अकाउंट्स व्हिच वर लाइक फेसबुक फर्स्ट एंड गूगल सेकंड, व्हिच वी जस्ट स्विच्ड बिकॉज़ गूगल बेटर परफॉर्म कर रहा था, राइट? तो वो सारी चीजें तो इज ऑलवेज ऑन द गो, जो मैं टीम के ऊपर छोड़ता हूँ हमेशा जजमेंट कॉल के लिए. अच्छा ठीक है, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं इस चीज को उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ. कल भी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसके साथ नहीं कर रहा, मैं इसको इस एग्जांपल के साथ मोल्ड कर देता हूँ सो दैट तुम आंसर भी आराम से दे पाओगे, है ना? लेट्स सपोज मैं एक टी शर्ट की कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ अपनी, और टी शर्ट की रेंज मेरी जो है वही है 600-700 रुपए से ज्यादा मैं टी शर्ट बेच नहीं रहा हूँ. और लाइफस्टाइल से रिलेटेड टी शर्ट्स हैं, या लेट्स सपोज लाइफस्टाइल भी नहीं है, हम ना फैमिली वाली टी शर्ट्स बेचते हैं और फैमिली से रिलेटेड, और कोई जनरल प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई यूनिक एंगल है, बट यही यूनिकनेस है कि हमारे पास हमारे कोट्स बहुत अच्छे होते हैं, हम न्यू डिफाइन करते हैं कोट्स, और हमारी टीम है जो अच्छा काम करती है कोट्स ढूंढने में, एंड बट कीप इट सिंपल, सुपर सिंपल इन टर्म्स ऑफ, और हमारे 500 से 600 की एक प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 700 जाती है. अब मैं तुम्हारे पास आया और तो सबसे पहले मैं अगर तुमसे मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं. मेरे पास जो बजट है ना मार्केटिंग बजट, मेरे पास 5 लाख रुपए का बजट है महीने का. ये मैं पहले अपना बता रहा हूँ कि ये मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ. मेरे पास फर्स्ट मंथ का टारगेट नहीं, मेरा बजट है, मैं 5 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूँ. मेरी प्रॉफिटेबिलिटी लेट्स सपोज 2x के ऊपर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है. अब हाउ यू गाइज गोना डू इट फ्रॉम स्क्रैच? शुरू कैसे करोगे तुम उस चीज को? मतलब जब मेरी क्लाइंट के साथ तुम्हारी बात हो गई, अब तुम अपनी टीम के साथ बैठे हो, हाउ यू गोना डू इट? If you want to take it or should I? No, absolutely go ahead. दोनों मिलके बता दो. I think ऐसा करते हैं, we first audits are very important for us, क्योंकि वो पिक्चर पेंट कर देते हैं कि क्या चल रहा है आपका. तो we do that. We start with Google Analytics, Google Ads, जो भी आपने किया आपने नहीं किया है, just we take access still. And then Facebook accounts and all, Pixel का ऊपर कितना डेटा है, बैकएंड में आपका कैसा Shopify एक्सेस पे कितना डेटा, ईमेल लिस्ट है, and then we figure out कि बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. And we try to give brands, अब brands play में थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है कि ड्रॉप शिपिंग में तो we want to be profitable from the third day, वो 3 दिन वाली टेस्टिंग जो होती है यूजुअली. ब्रांड प्ले में हम लोग को लॉन्गर टाइम का गेम होता है, तो वी इवन ब्रांड्स आर ओके विद इट कि फर्स्ट मंथ आप बिल्डअप करो, सेकंड मंथ भी चाहो तो बिल्डअप करो, या फिर सेकंड मंथ से आप कन्वर्जन पे स्टार्ट फोकस कर दो. तो वो हम लोग को डिसाइड करना होता है कि इज दिस ब्रांड राइट अवे ओके फॉर गोइंग फॉर कन्वर्जन्स, और वी वांट टू गेट समथिंग गोइंग फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड, एंड देन कन्वर्जन पे फोकस करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे. सो कीपिंग इन माइंड दैट आई थिंक फॉरमोस्ट हम लोग का प्लेटफॉर्म फेसबुक ही होता है. Yes. And then we take a conversation कि is Google better or let's go with Facebook. So by default Facebook ही रहता है. And how we do it is जो 5 lakhs का spend है, then we start with the strategy part. कि if you have a hero product and we want to focus with that, या आपका hero collection है या फिर आपका seasonal collection कुछ है, how we are going to do that. So first 1 week में वो research वाला part जो भी हम लोग करते हैं, उसके basis पे we do 2 things for any kind of brand. First goes with the copywriting. Because with brands, like you have to have that solid communication की emotional driven तो होना ही होना है. Emotion से people buy, like if you go buy a car, you already know you are going to buy which color या फिर 5-seater utility और और सब कुछ होता है. तो feel driven first होता है, and then तो copywriting and creatives पे first 1 week में हम लोग focus कर लेते हैं brands के साथ. We usually brands की team is good with social posts
unless their ROI centric creative वाला part already settled out है. तो what we do is like हम लोग एक creative brief and all we do for with brands जिसमें हम लोग basically knowledge transfer we give it to the clients. And then they understand what kind of creatives have to be developed, and then we help them out. So copywriting creatives के साथ we pull up and then we take forward with the ads part. So then it is on the team to have their experience in the play and फिर decide करना होता है उनको कि basically they are going to go with see the conversion or they want to build up the momentum with add to carts and traffic and solidify करना communication, right kind of audience and creative testing जो होती है. So एक kind of campaign launch करो जिसमें creatives ही test किए जा रहे हैं and we want to build a pool of campaigns where हम लोग को creatives पता चल जाएगा. And now when we are going to go forward with the conversion campaign, then we know which type of creatives work, either carousel or videos or certain specific language of videos work. And फिर उसके बाद जब testing part is over, whatever time it takes, sometimes it's very random. We assume we are also getting wrong sometimes. So we assume कि 2 weeks में हो जाएगा सब कुछ, but then it takes even longer. वो momentum ले आने के लिए it takes even longer. And once that happens, it keeps on rolling. So and this structure is very important for us because fortunately we have taken up that challenge also थोड़ा सा over stretch करके अपनी expertise को, and then it worked out also for us, and we have been able to sell products worth of like 20,000 25,000 also. AOV 25,000 तक का product, and we are like month on month scaling चल रही है brands की and all. So ये momentum build करने वाला जो inertia आ जाता है एक कि you have a pool of audience coming in and then you have a pool of audience which is getting converted also. So that in turn long play. So basically वही हो गया कि शुरुआत में you put some efforts and awareness and reaching out more people and getting a warm audience for your brand, और उसके बाद then you focus on conversion. But उसके बाद तुम्हारा एक momentum बन गया कि warm भी बनता रहेगा, conversion भी चलता रहेगा, and you have a good balance altogether going on. Problem ये होती है brands के साथ, problem ये होती है कि when brands come to us, 80% of the time what happens is उनका communication strong नहीं होता. They are not able to rightly tap into the audience. Brand की audience आपसे एक बार convert हो जाएगी, लेकिन they won't come and buy for the second time. So ये product market fit की problem है? नहीं, ये product, like communication is not the right way. Their product is absolutely fantastic. Their communication, the way they are having copywriting and the creatives, the kind of imageries that they are showing, the quality that they are showing, वो perfect नहीं होता है. So what about copywriting? You guys do the copywriting or their team do the copywriting? Our team does that. For the post, it's a collaborative thing. अगर copywriters हैं brand के पास, so it's a collaborative thing. Otherwise, copywriting is on us, and then brands के already tone set होती है किस way में वो लोग अपने social media post बनाते हैं. तो उनके designers को already skill set होता है. तो what we do is like creatives के लिए we just help them out. Got it. तो ये वाला जो तुमने केस बताया जिसमें दोबारा से वो buy नहीं करते जो customers हैं, उसका main reason क्या निकल के आता है? They forget about you. It's not strong communication. आपने एक experience deliver नहीं किया है. Product में buying purchase cycle में customer pampering में. So I use, rather than customer service, I use the word pampering, because if you pamper someone, they will remember you anyhow. So pampering in what way? Pampering is like the way you are communicating them when to make their purchase happen. अगर उनको problem आ रही है तो how you are talking to them, right? या emails जिस type के जा रहे हैं. We are very focused on post-purchase ads. Post-purchase ads, yeah. So post-purchase. So you guys don't do the email marketing for them? We have partners with that. So not in our internal agency. So basically, you don't do it as a service. We don't. Yeah. You don't. So you keep that aside, and those guys basically do it. So you guys just focus on the marketing part of like your sales channel, जो marketing channels हैं उसके ऊपर, paid marketing. Yeah. जो experience है overall, you keep that with the brand itself कि आज वो आपका ही काम है, हम तो marketing में आपकी help कर रहे हैं. We can guide you, but वो हमारा consultative रहता है उसमें. We take a very consultative role in most of the things. So I think बहुत सारे लोग जो एक एजेंसी के पास आते हैं वो गलत माइंडसेट से आते हैं कि ये जादू की छड़ी ले आएंगे और कुछ हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हम अगर ईमेल भी भेजते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें हमने नीचे लिखा रहता है व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रांड्स. आपको अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं रोकनी है, आपको अपनी ऑर्गेनिक सोशल पोस्टिंग नहीं रोकनी है, आप अपना काम करते रहो. वी विल डू आवर थिंग, वी विल बी गेटिंग कोल्ड ऑडियंस एंड एवरीथिंग, बट यू गाइस कीप वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर ब्रांड, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्गर ब्रांड बनाओगे दैट इज गोइंग टू हैव अ फाइनल इंपैक्ट ऑन द नंबर्स वी पुट, राइट? सो दैट इज समथिंग वी ऑलवेज ले. इसमें ना मुझे 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं. आज ही
मैंने पढ़े थे तो मैं शेयर भी कर देता हूँ। एक आया था नेट प्रोमोटर स्कोर, और दूसरा आया था कि 50% ऑफ द परचेज शुड कम फ्रॉम रेफरल। अगर आपके पास ये तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये 2 पॉइंट्स बहुत सुपर इंपॉर्टेंट थे कि अगर ये 2 चीजें आपकी स्ट्रांग है तो यू विल ग्रो। बिकॉज एनपीएस तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर आपकी ब्रांड का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं हो रहा, ओवरऑल अच्छा ही नहीं हो रहा, तो पीपल वोंट टॉक अबाउट इट, एंड पीपल वोंट टॉक अबाउट इट, दे वोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, तो वो रिपीट बाय भी नहीं करेंगे। और उससे सेकंड चीज नहीं होगी रेफरल। और अगर आपका रेफरल 50% नहीं है, या इवन मैं बोलूं 30% भी हो जाए तो भी ठीक है, 30 to 50% अगर आपका रेफरल नहीं है तो यू वोंट ग्रो। बिकॉज पेड मार्केटिंग कब तक अपनी, यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड ऑन paid marketing, honestly, right? You have to build up an experience. Absolutely. Paid marketing will just give a boost to it, जो चल रहे हैं चीजें। लेकिन आज एप्पल है, I talk about Apple, you talk about Apple, we talk about Apple, and हमें मालूम है कि अच्छा उसका तो अब वो लोग जब मार्केटिंग की वो कंपनीज को अपना बजट देते हैं 1 मिलियन या 10 मिलियन या 100 मिलियन, वो ये नहीं बोलते कन्वर्जन लेके आ रही है। वो कहीं से कहीं तक कन्वर्जन की बात नहीं करते, दे जस्ट बोलते हैं हमें लोगों तक पहुंचना है, जस्ट रीच आउट टू एज मच एज पीपल पॉसिबल एंड जस्ट शो आवर एड्स टू मोर एंड मोर पीपल, उन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा जाए और बाकी तो हम संभाल लेंगे, वी नो इट हाउ टू बेसिकली डील विद इट। Yeah. So बस वही है कि when you are not talking about Apple, when you are talking about a smaller business, तब you just have to be very careful about the kind of people you are reaching out to. राइट वो कन्वर्टेबल तो होने चाहिए इन द एंड ऑफ द डे, राइट। उस चीज का बस ध्यान रखना होता है, क्योंकि एड्स बस क्या करते हैं, पुट्स योर ब्रांड ऑन स्टेरॉइड्स। फाउंडेशन स्ट्रांग है, बाल्टी में छेद नहीं है अगर, तो आपका जो ऊपर से ट्रैफिक का पानी आ रहा है वो लीक नहीं करेगा। वी कॉल इट द लीकी बकेट सिंड्रोम। हम लोगों ने इसको थोड़ा कॉर्पोरेट टर्म दिया था अपने कंसल्टिंग्स में, बट इन द एंड ऑफ द डे अगर आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई है, व्हाटएवर इज गोइंग टू कम द ट्रैफिक, इट्स नॉट गोइंग टू break right? अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क इन सिंक। राइट। मैं भी इसको इस तरीके से लेता हूँ कि एक मशीन है, उसमें आपने कुछ इनपुट डाला, पहले आपने थोड़ा इनपुट डाला, वो आउटपुट निकला, फिर आपने थोड़ा प्रेशर और डाला, उसके अंदर थोड़ा और इनपुट दिया, तब भी उसी फ्लो में निकल रहा है। नो मैटर यू आर पुटिंग 100 और यू पुटिंग 1000, यू पुटिंग 10,000, निकलेगा उसी फ्लो में, उसी चीज में, उसी तरीके से एक्सपीरियंस जाएगा। then only you have a good machine, a proper business going on. That's the thing. An example is that last year, like we have had a long-term engagement with one of our clients. काफी premium price product है, but then what happened with them? उनका product वही था, fantastic reviews from whoever was buying, but then उनका scale नहीं grow पा रहा था, and वो उनको दिख रहा था कि people who are following them, people who talk to them for buying the product, वो one-off customer ही लग रहे थे कि थोड़े दिन लिया, थोड़ा सा save कर लिया, and then they buy the product, and then that's it, one time. एंड देन वो जो एक एक्सपीरियंस वाला होल होता है, वॉइड होता है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है एंड आई वांट टू हैव इट, वो शांत हो जाता है, एंड देन दे डोंट बाय फॉर द सेकंड टाइम। सो व्हाट वी डिड वाज वी इम्प्रूव्ड देयर कॉपीराइटिंग एंड वी इम्प्रूव्ड देयर क्रिएटिव्स इन व्हिच इट वाज गोइंग आउट, कैसे प्रेजेंट हो रहा था, एंड देन ऑफ कोर्स द एड्स में कौन सा टाइप की ऑडियंस आप लोग यूज कर रहे हो एंड ऑल। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज लाइक right from the first month itself, both the founders were raving ki like the kind of interactions that we are having right now, it has never happened to us. And people who purchased 2 years back and this years back, and then the kind of audience that segments that, like we see the social profile of the person who has purchased or who has messaged us on social Instagram or something, and they are the perfect kind of audience that we want to have. Or it you know eventually exponential इतना ज़्यादा हो गया ये चीज़ कि since last 1 year हम लोग ने उनका एक भी सेल नहीं किया। लाइक they used to have like 3 sales a year, वो end of season and then you know festival sale and all, and without sale उनका same time of traction है। and वो होता है ना कि जैसे ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे बाकी ब्रांड्स अगर डिस्काउंट दे रही तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है, नेवर इन्होंने नहीं दिया। तो वो जो पर्सोना एक बन गया, तो पीपल आर एनी हाउ कमिंग एंड बाइंग फ्रॉम देम। दिस इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, और मैं बोलूंगा दिस इज सुपर डुपर इंटरेस्टिंग कि ये चीज हो पाए। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है, मैं देखता हूँ कि जो जिन लोगों ने ब्रांड बिल्डिंग करी है, दे गिव लाइक 10-15% डिस्काउंट, वो भी बड़ा ह्यूज लगता है देखने में। जो ब्रांड्स हैं उनके लिए, जैसे एप्पल है, 10% मिल गया तो मतलब आग लग गई, फायर, मतलब उधर तो मिलना मुश्किल है। और कई ऐसी ब्रांड्स हैं जो सिर्फ डिस्काउंटेड प्ले कर रही हैं 50%, 60%, 70%, एंड देन ओनली वी गेट दैट वाओ 50%। लेकिन कुछ ऐसी ब्रांड्स जो सिर्फ 5% और 10% में उनके लिए वाओ फैक्टर आ जाता है।
Yeah. So the I think इसमें पावर प्ले प्राइसिंग का भी होता है. इट्स अ वेरी बिग डील कि आपके प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है. बिकॉज इफ you have a low price point product, then to capture the market, to do a lot of stuff you have to do. No matter how much big of a good brand you build, आपके पता नहीं कितने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करा लो, लेकिन आप फिर भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते without giving a discount. Then only people are going to capture. But then if you have a high price point product, you can very well play the brand game, and without giving discount you can very well go forward with that. Yep. और इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी कही, डिस्काउंट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑफर, पीपल ऑलवेज थिंक डिस्काउंट. ब्रांड्स आल्सो थिंक जस्ट डिस्काउंट. मेरे को लगता है, और ये हमने किया भी है, लगता है क्योंकि किया है इसलिए पता है, दैट ऑफर की जगह ब्रांड्स को यूज करना चाहिए वर्ड ऑफरिंग इंटरनली. और डिस्काउंट के साथ यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्रिएटिव विद द काइंड ऑफ ऑफर्स यू पुट आउट, राइट? इट शुडंट ऑलवेज बी कि हाँ 15% ऑफ. It can be, कल ही मैंने निक को एक एड भी सेंड करी थी, buy from us, we'll send 2 of your 3 of you a free AirPod, right? भेज देंगे. Now that is going to get good CTR. People are going to buy like crazy, and 3 of them are going to get AirPods as well. Right? Discounts are like, mostly people think कि offer is basically discount. You're totally right. But offer is not like that. अगर आप offer में कुछ अच्छा, if I am like doing consulting play और मैं किसी को बोलूं I will do the consulting with you for the next 6 months. You will have my phone number. You will have my Skype. You can call me anytime at 3 a.m. in the morning. I will handhold you. I will provide you the best copywriters. I will provide you the best media buyers. I will help you in hiring. And then I will charge you $10,000. People will say, okay, it's good. And I will give you this guarantee that if you don't get there in 6 months, I will pay you back your 10,000. Yeah. Now it's like a offer which like people won't refuse that offer because they don't have anything to lose. Exactly. Rather than मैं बोलूँ नहीं यार ना ऐसा कर दूँ, मैं $1,000 में कर दूंगा तेरे लेगा. और वो वहाँ पे conversion आपका better हो जाएगा, but then you won't be able to manage quality, right? Quality, true. ये वही बात होगी कि कई लोग जो products बेच रहे हैं वो commodity, उन्होंने पूरा का पूरा उसको वो basically they are playing that game of जो मैक्सिमम Amazon के ऊपर प्ले होता है. इट्स लाइक रेस टू द बॉटम, या रेस टू द बॉटम, प्राइस वॉर चल रही है, हु कैन सेल द लीस्ट लाइक सबसे सस्ते में क्या, और सिर्फ जीतता लास्ट में वो है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है, बिकॉज ओनली दोज गाइज कैन सस्टेन, बिकॉज अदर पीपल आर जस्ट प्लेइंग दैट buying from manufacturer and then selling it. तो वो से margin cutting का game हो जाता है. Not even marketing, it's just margin cutting. लोग की inventory है, the brands that are having inventory, they have this, like when we have the first call, intro call with the brands की जानने के लिए उनके brand के बारे में, तो they are saying this कि if they hold, most of the brands who hold inventory अपनी खुद की बना करके अपना manufacturing है, they are wanting to move away from Amazon or any kind of marketplace as their main revenue driver. They want to move away from it. It's a very, एक तो cost का भी फर्क पड़ता है, and then there is about the data part. Control. It's about control. They don't have control. It's about competing with the kind of people that they don't want to compete with also. जो supplier से लेकर के and फिर send कर रहे हैं, तो they can play the price war. Whereas these brands can't, because इनका तो fix है. They can't switch their supplier and have a cheaper product, right? So they are wanting to shift away from that and have it from their own. But do you really think कि India में, because India has a big influence of these Amazon, Myntra and all these marketplaces, और अच्छे खासे businesses build हुए हैं इसके अंदर, so do you think like can we ignore these marketplaces for D2C brands? Ignore तो नहीं कर सकते. I would be very arrogant if I say कि you can ignore it, but it's not like that you can't have a big chunk of the cake without putting majority of your foot in it. So basically उस पे भी presence तो चाहिए ही होती है. But yeah, it's not impossible. Like we have brands which are doing good just through the other paid marketing channels as well. It's like your campaign. अगर आपके 10 कैंपेन है और सब में से 2 सेल भी आ जा रही, तो आपका रेवेन्यू अच्छा हो गया. मे बी एक कैंपेन ने आपको 10 सेल दे दी सबसे ज्यादा. तो इट हैज टू बी द सेम वे कि आप 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, एंड देन योर सेल इज मेजॉरिटी, वो जो 10 सेल आई आपके कैंपेन से, दैट इज बेसिकली योर वेबसाइट. And moreover, I think marketplace में होना, it's kind of a branding play as well. You have to you need to have some presence on the marketplace to, like, because people will search on marketplace no matter what. तो revenue तो आपका, अगर आपका brand बन गया तो marketplace is a good revenue, right? Revenue source. तो मेरे हिसाब से कंटेंट कभी नहीं होना चाहिए. अगर आप ई-कॉमर्स चला भी रहे हो, लाइक एक ही चैनल को पकड़ लिया, लाइक कि बस मैं फेसबुक एड्स ही करूंगा, मेरे को तो यही आता है, मैं यही करूंगा, तो दैट इज गोइंग टू गो लाइक यहाँ तक ही जाएगा.
ये एस्टैब्लिश कर दिया, दूसरे पिलर्स एस्टैब्लिश करो, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा यू नीड टू कीप एस्टैब्लिशिंग एज अ फाउंडर, ट्रैफिक चैनल्स एस्टैब्लिश करते रहना चाहिए। तो ये हो गया है, Amazon से भी थोड़ा पैसा कमा लो, क्योंकि लोग तो है ना सर्च कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर जरूर ले जा रहा है उनके कीवर्ड्स को, बट सर्च जरूर कर रहे होंगे। या इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक कि Amazon हटा दो, आप क्रेड की बात कर लो, क्रेड पे आप अगर अवेलेबल हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ बल्क ऑफ सेल वहां से, लेकिन अगर आपने बता दिया अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी रखा हुआ है, इवन फॉर द इन्वेस्टर प्ले, अगर आप जाके इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, किसी से भी, सीड इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, वीसी, तो आप कहोगे क्रेड पे अवेलेबल हो, तो दे वोंट आस्क कि कितनी सेल आ रही है वहां से, दे वुड जस्ट से कि ओके गुड। एंड मोरओवर द कस्टमर्स विल अगेन गेट सम, यू विल गेट सम आईबॉल्स ना, मतलब हर जगह पे यू विल गेट सम। ठीक है, मैंने क्रेड पे देखा था, Amazon पे मुझे दिख रहा है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ, Amazon से कर लेता हूँ बाय, क्रेड पे में भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा मेरा, या जो भी है। मैंने किसी ऑटो के पीछे देखा था, वहां पे लगा हुआ था बैनर, तो ठीक है, बिकॉज अब मैं आजकल देखता हूँ ऑटो के पीछे जेप्टो का लगा हुआ है हर जगह पे, बैनर्स लगे हुए हैं। अब दो जेप्टो अभी मेरे उसमें आई नहीं है, मेरे लोकेशन पे अभी नहीं आया, लेकिन मैंने उसकी ऐप डाउनलोड करके रख ली है, बिकॉज आई एम लाइक, मुझे मालूम है उसकी 10 मिनट्स डिलीवरी है, ग्रोफर्स ने उसी को कॉपी करके ब्लिंकिट बना दिया है, तो आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। अब उन लोगों ने ब्रांडिंग अभी भी कर रहे हैं, मेरे आसपास के जगह पे तो ऑटो चल रहे हैं ना, तो अब जब जिस दिन आएगी, आई विल डेफिनेटली गोना ट्राई इट वंस, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करूंगा मैं। और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस वाला पार्ट आ जाता है, अगर जेप्टो ने मुझे एक्सपीरियंस दे दिया बेटर फ्रॉम ब्लिंकिट, मैं उसका कस्टमर बन जाऊंगा। तो अभी वो लोग ऐड टू कार्ट कैंपेन चला रहे हैं आपके ऊपर। अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, और मैंने उनकी ऐप डाउनलोड कर लिया, तो अब मैं उनका ऐड टू कार्ट भी हो चुका हूँ। अब उनको बस अपना रीटारगेटिंग कैंपेन रन करनी है, जिस दिन उन्होंने लॉन्च करना है मुझे, बस दैट्स इट। आप कन्वर्ट हो गए। यस, फिर पोस्ट परचेज में हो, देखते हैं आप फंसते हो पोस्ट परचेज में, उसके लिए तो दे कीप ऑन सेंडिंग, उसके लिए तो 10 मिनट में पहुंचाना पड़ेगा। नहीं, मोर ओवर हमने पता है, वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक इंडिया में जो लोग अभी वो गेम प्ले नहीं कर रहे हैं, स्मॉल ब्रांड्स नहीं प्ले कर रहे, अबाउट एप्स एंड यू नो बिल्डिंग अप अ ऐप फॉर योर ब्रांड्स, और व्हाट्स द पावर ऑफ अ ऐप इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू समवन्स पॉकेट एंड सेंडिंग 5 नोटिफिकेशन इन अ डे, और वहाँ वो कितनी पावरफुल है। तो but like the thing is, the time is limited right now and I still have questions, so we might be able to do part 2 of this in some time, अगर लोगों का अच्छा इंटरेक्शन रहता है तो। अगर तो इन ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इस पे अच्छा खासा इंटरेक्शन आता है तो प्लीज कमेंट पार्ट 2 एंड आई विल ब्रिंग बोथ ऑफ दीज गाइज अगेन, और इनको खींच के लेके आएंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे एक और कुछ और बातें करेंगे। अपने क्वेश्चंस भी टाइप कर देना, मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो हम पूछ सकें। मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछना था बमर के बारे में, बट इट विल टेक टाइम। ये बंदे वो हैं जो बमर की मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग की, और आई फील रियली प्राउड अबाउट दिस कि अच्छा ये बंदे मेरे में एडेड है एज अ फेसबुक फ्रेंड, तो आई कैन शो ऑफ अबाउट इट। So let me know, yeah, guys, in the comments. And thank you so much, yeah, both of you for showing up. Absolutely, yeah, always a pleasure. And yeah, looking forward to have the part 2 of this talk. Yeah, बहुत मजा आया. Amazing. Thank you so much, guys.